Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter The Indian Constitution, and in the previous class, we were discussing the features of the Indian Constitution. We have discussed the first important feature of the Indian Constitution is federalism. Then we have discussed about the parliamentary form of government, and then we have discussed about that separation of power, and now we are discussing the fundamental rights which are given to the people of India by the constitution. These fundamental rights are called, as Dr. Ambedkar called them, conscience of the Indian constitution, because these rights are very much important for any individual in order to live a dignified human life. We cannot live a dignified human life in the absence of the fundamental rights. So we need some rights so that we can live a respectable life. And in the previous class we have discussed about right to freedom, right to equality, the first right which is given by our constitution. And this right to equality is under this right to equality we all are equal in the eyes of law. No one is will be treated in a different way by the law. Everyone is equal, है. And then the second thing which is given under this right to equality is that no citizens can be discriminated against on the basis of their religion, caste or gender, है. And every person has access to all public places, and the state cannot discriminate against anyone in matters of employment. सबको एम्प्लॉयमेंट को देने में गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. बट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट सम weaker section of the society like Dalits and tribals, they are given reservation by the government, because they are, in order to bring them to the equal level, it is important to provide them some kind of help, है ना. So this help is in the form of reservation policy. And then we have discussed, we were discussing about right to freedom, है ना. The right to freedom, it means that we have right to freedom of speech and expression. We can express ourselves in any way. Like we can express ourselves through speeches, we can express ourselves through drawing or painting or music or dance, है ना. And this freedom of speech and expression is responsible for freedom of media also, because we have this right. This right is given by the constitution to freedom of speech and expression. That is why our media is also free, completely free. The media openly can say against the government, and the government is not going to put any restrictions on the media, or the government cannot punish the media channels or the companies for that purpose कि उन्होंने government के against कुछ कहा है ना. तो this is called right to freedom. And now the third right which is given to us is right against exploitation. Okay, the third right is राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. मतलब अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके अगेंस्ट हमें राइट दिया गया है कि कोई हमें एक्सप्लॉयट ना कर सके. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन एनी सोसाइटी और इन एनी प्लेस एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो किसका होता है? एक्सप्लॉयटेशन उसी का होता है जो वीक होता है ना. किसी भी जगह पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है उनका ही एक्सप्लॉयटेशन होता है.
इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनको ये गारंटी देता है कि अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता नहीं, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट देते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। जैसे जो वीकर सेक्शन है वो बच्चे हैं, बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म चाइल्ड अब्यूज़। बच्चों के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं कई सारी सोसाइटीज़ में, हमारी सोसाइटी में भी होती है, क्योंकि बच्चे कमज़ोर हैं, है ना। वो कुछ उनको बहुत ज़्यादा समझदारी भी नहीं होती है, और इस समझदारी नहीं होने के कारण कई बार ही उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, जिसमें कि बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसके अगेंस्ट बच्चों को ये इंश्योर करता है कि जो 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं, the children below the age of 14 cannot be employed in a hazardous activity। hazardous मतलब जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिनमें काम करने से, ऐसे फैक्ट्रीज जहाँ पर काम करने से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वैसी जगहों में बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसी के साथ एक और चीज़ अब जुड़ गया है, जो कि अब पहले हमें नहीं मिला था। पहले सिर्फ ये था कि चाइल्ड लेबर नहीं करना है, हजारदस काम में बच्चों को नहीं लगाना है। अब हमारे फंडामेंटल राइट में एक और राइट जुड़ गया है, राइट टू एजुकेशन, जिसका ये मतलब है कि जो भी बिलो 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, तो अब जो है वो किसी भी फॉर्म में चाइल्ड लेबर ख़त्म हो गया है। किसी भी तरह से 14 साल से जिन बच्चे की एज कम है उनको किसी भी तरह के काम में नहीं लगाना होगा। तो दिस इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हुआ जब लोगों की खरीद बिक्री होती है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स इंसानों की परचेजिंग और बाइंग एंड परचेजिंग होती है, इसी को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो इस पर भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया है। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर कहीं पर भी इंसानों की खरीद बिक्री होती है। तो ये होता था हमारी सोसाइटी में। पहले स्लेव्स हुआ करते थे जिनको ऑब्जेक्ट्स की तरह खरीदा जाता था और बेचा जाता था, उनके ओनर्स होते थे। जैसे हम सामान के ओनर होते हैं, वैसे ये स्लेव्स दे वर आल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब इस पे पूरी तरह से रोक लग गया है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या है? जब हम किसी से काम कराते हैं, है ना, उससे फिजिकल वर्क कराते हैं और उस फिजिकल वर्क के बदले में उसको पूरा पैसा नहीं देते जितना पैसा उसे मिलना चाहिए उस काम के लिए। बल्कि सपोज़ किसी को अगर हमने मान लो कि 1000 रुपया कर्ज दे दिया, ठीक है, तो अब उस 1000 रुपये के बदले में उस इंसान से सालों तक काम कराया जाएगा, फिजिकल लेबर, क्योंकि वो पैसे वापस नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट एबल टू रीपे the amount. So in that case what will happen, that he will be forced to do labor for years। उस थोड़े से अमाउंट के लिए उसको सालों साल फिजिकल लेबर करवाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड बॉन्डेड लेबर। या फिर काम करवाया गया और उनको बहुत नॉमिनल अमाउंट दिया गया, पैसा नहीं दिया गया, कुछ सामान दे दिया गया, है ना, तो इसको हम लोग बंधुआ मजदूरी कहते हैं। पहले ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस था जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट था, बहुत होता था हमारे गांव में। इस तरह के सिचुएशंस थे जहाँ पर बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो जो जिनसे बॉन्डेड लेबर कराया जाता है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, बहुत बुरी तरह का ये एक्सप्लॉयटेशन है।
लेकिन अब बॉन्डेड लेबर पे गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है कि बॉन्डेड लेबर नहीं आप करवा सकते, है ना। तो फिर भी अभी भी ऐसी बात नहीं है कि हमारी सोसाइटी में सही में बॉन्डेड लेबर जो है वो ख़त्म हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, बट कम हो गया। पहले जितना ज़्यादा लोग थे बॉन्डेड लेबर, अब बहुत कम हो गया है, बट स्टिल इट इज़ देयर। अभी पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसी बॉन्डेड लेबर को हम फोर्स्ड लेबर भी कहते हैं। हम किसी से ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, उसको पैसे न दे करके, उसको डरा करके, धमका करके उससे काम कराया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। तो जो कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, लेबर हैं, उन सबको ये प्रोटेक्शन देता है, दिस फंडामेंटल राइट। अब we will see the next fundamental right, that is right to freedom of religion. Fourth is right to फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें धर्म के मामले में पूरी आज़ादी देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ कि जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको अपने मर्जी से वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी इस धर्म के में उनको कहा जाता है करने के लिए, उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं। कोई भी उनको नहीं रोकेगा, ना तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कोई गवर्नमेंट के एजेंसीज या ऑर्गन्स, कोई भी उनको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने से नहीं रोकेगा। हर किसी को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि वो अपने मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हम चाहे तो धर्म अपना बदल भी सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार भी हमें देता है कि हम अपनी मर्जी से, हाँ फोर्सफुली ये नहीं होना चाहिए, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है धर्म बदलने के लिए, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे धर्म में हम बदल सकते हैं, है ना। तो हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। हमें अपने धर्म के बारे में धर्म के अनुसार बिहेव करने का। जैसे अगर हमारा धर्म हमें कहता है कि हमें बुर्का पहनना है, तो कोई भी गवर्नमेंट हमें उस बुर्का पहनने से नहीं रोक सकती। अगर हमारा धर्म हमें कहता है कि हमें पगड़ी लगानी है, जैसे सिखों का धर्म होता है कि वो पगड़ी लगाते हैं, है ना, तो उसमें कोई भी गवर्नमेंट उसको कंपेल नहीं करेगी कि नहीं आपको पगड़ी नहीं लगाना है। जैसे आपने क्लास 6 में जो सेक्युलरिज्म का चैप्टर था उसमें ये था ना कि जो सिख है उसको चालान नहीं काटा जाता है अगर वो हेलमेट नहीं पहनता है, क्योंकि उसकी जो पगड़ी है उसकी वजह से ही इज़ नॉट एबल टू वेयर द हेलमेट एंड देन ही विल नॉट बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट कि उसने क्यों नहीं पहना, उसने पगड़ी क्यों निकाली है। तो दिस इज़ द रिलीजियस फ्रीडम विच इज़ गिवन टू द पीपल ऑफ द कंट्री, है ना। और इसी तरह से हमें अपने धर्म के बारे में प्रोपोगेट करने का भी अधिकार है। प्रोपोगेट से का क्या मतलब होता है कि धर्म के बारे में हम प्रचार कर सकते हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये राइट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पर कि रिलीजियस डाइवर्सिटी मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के जो 8 मेजर रिलीजन है उन सबको मानने वाले लोग इस कंट्री में रहते हैं। तो ऐसी कंट्री को में ये ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे, यूनाइटेड होकर रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। दे मस्ट बी गिवन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इफ़ वी वांट देम टू बी यूनाइटेड। ओके, सो ये हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा राइट है दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
cultural and educational rights. ठीक है, अब what do we mean by this cultural and educational right? This cultural and educational right is actually given to minorities. ठीक है, this right is especially for minorities. अब जो minority का मतलब क्या है, वो लोग जिनका नंबर कम है. तो यहाँ पर हम दो तरह के हमारी कंट्री में जो minorities हैं वो 2 टाइप्स की minorities हैं मेनली, और भी होते हैं बट अगर ब्रॉडली हम देखें तो 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज आर देयर. एक जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होते हैं. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरे जो होते हैं दे आर रिलीजियस माइनॉरिटी. ठीक है, अब इसका क्या मीन करते हैं. सबसे पहले तो माइनॉरिटी का मतलब यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी. किसी भी ग्रुप का जिसका नंबर कम है उसको हम माइनॉरिटी कहते हैं. जैसे हमने जब क्लासरूम वाला डिस्कशन किया था जिसमें कि गेम्स के पीरियड में गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. गर्ल्स कुछ और खेलना चाहती है, बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, बॉयज़ क्रिकेट खेलना चाहते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स वाज लेसर देन नंबर ऑफ बॉयज एंड द टीचर डिसाइडेड दैट द टीचर आस्क्ड टू take decision by this showing of hands, है ना. अपने अपने हाथ उठाइए, जिसका जो भी ज़्यादा लोग चाहेंगे खेलना वही हम खेलेंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी, लड़कों की मेजॉरिटी थी और लड़के क्रिकेट खेलना चाहते थे तो लड़कों की ही चली, है ना, क्योंकि लड़के ज़्यादा थे. तो माइनॉरिटी का मतलब यही होता है कि किसी भी बेसिस पे माइनॉरिटी हो सकते हैं जिनका नंबर कम है. जहाँ जो जिस क्लासरूम डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं वो जेंडर को लेकर के, वो वहाँ पर जो माइनॉरिटी है वो जेंडर के बेसिस पे है ना. अब जो अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम आती है, 2 तरह के माइनॉरिटीज़ होते हैं. एक होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरे होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी होते हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे माइनर है. मतलब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो बोलने वाले लोगों का नंबर बहुत कम है, तो दे आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, है ना. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसको बोलने वाले लोगों का नंबर कम है कंपैरेटिवली अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से, तो हम इसको माइनॉरिटी कहते हैं. इसी तरह से किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोगों का जो नंबर है वो बाकी रिलीजन को मानने वाले लोगों से कम है, तो उसको हम रिलीजियस माइनॉरिटी कहते हैं. तो ये 2 तरह के माइनॉरिटीज़ होते हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो एजुकेशनल और कल्चरल राइट दे रहा है वो इन्हीं माइनॉरिटीज़ के लिए है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपना वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करने में अगर उनको गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल हेल्प देगा. ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री सेक्युलर है और सेक्युलर कंट्री में गवर्नमेंट कोई भी धर्म से संबंधित काम नहीं कर सकता, रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकता. द गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी रिलीजियस एक्टिविटी बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पर क्या बात है कि सपोज कोई रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, सपोज मुस्लिम्स की रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है. अब मुस्लिम्स की जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन्होंने अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने का डिसीजन लिया. कहीं पर भी किसी भी जगह के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने का डिसीजन लिया. और इस तरह के जो मुस्लिम्स का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उसको यू मस्ट बी नोइंग क्या कहते हैं, शायद नहीं भी जानते होंगे, मदरसा, है ना. दिस इज कॉल्ड मदरसा. तो ये ओपन करने का अधिकार इसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो ओपन कर सकते हैं ताकि वहाँ पर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली, अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली वो अपने कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे, है ना. अब इनको अगर मदरसा इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए,
सपोज गवर्नमेंट से वो फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे, तो गवर्नमेंट सेक्युलर है तो इट कैन नॉट डू एनी रिलीजियस एक्टिविटी, सो it should not give any financial assistance to this religious activity, क्योंकि ये तो रिलीजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये राइट गवर्नमेंट को कहता है कि अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है और वो अपने धर्म, अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन करना चाह रहा है और उसमें अगर उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट को उसको फाइनेंशियल हेल्प देना होगा, बट ओनली फॉर माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, मेजॉरिटी के लिए नहीं, लेकिन माइनॉरिटी के लिए गवर्नमेंट को उसको फाइनेंशियल एड देना होगा। दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एक तो उनको ओपन करने का अधिकार है, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने का अधिकार है ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके। और अगर उनको इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उनको गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम। गवर्नमेंट इस बेसिस पे उनको ना नहीं कहेगी कि वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो उनको नहीं देना है। ठीक है, सो दिस इज आवर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड नाउ वी विल कम टू द लास्ट right, that is right to constitutional remedy. Sixth is right to constitutional remedy. Now what we see that this is the most important right in all the rights. This is the most important right because this right allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state or any individual or any private organization. Okay, so this is the most important right because suppose so many rights are given to the people of the country, but if the government itself starts violating those rights and if we don't have any remedy to what to do in that situation, if government itself is violating our right, then what to do? If nothing is given in the constitution, then in that situation all our rights would have become useless, meaningless. किसी की राइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इतने सारे राइट्स आपने दे दिए लेकिन इस बात के बारे में किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन ही नहीं है कि अगर कोई हमारे राइट्स को ब्रीच करता है, अगर कोई हमारे राइट्स को हमसे छीनता है, वायलेट करता है तो क्या करना है। इस बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा होता तो हमारे सारे राइट, चाहे वो राइट टू फ्रीडम हो, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो, चाहे वो कल्चरल एजुकेशनल राइट हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, एवरी राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसका ये मतलब है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट हमारे राइट को हमसे छीनता है, वायलेट करता है, ब्रीच करते हैं गवर्नमेंट हमारे राइट्स को, तो हम सीधे जुडिशरी में जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, है ना। तो हम देखेंगे कि ये सारे हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लिया। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू द people of India. As I told you in the starting of this fundamental right, we have actually in original constitution we have 7 fundamental rights. The 7th was the right to property, but now this right to property is no more a fundamental right, it has become a legal right. So you have to study only about these 6 fundamental rights, है ना। तो ये जो these fundamental rights
जो हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, है ना, फॉर द इंडिविजुअल। एक्चुअली वी सी दे हैव टू ऑब्जेक्टिव्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके दो ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है ये ऑब्जेक्टिव? जो पहली ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, है ना। हर इंसान को, हर किसी को ये इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो उस राइट को क्लेम कर सके। और दूसरी चीज़ जो वो ये है कि दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। जिसको भी ये लॉ मेकिंग का पावर है, लॉ इन्फोर्समेंट का पावर है, उन सब के ऊपर ये राइट्स जो हैं वो बाइंडिंग है। कोई भी जो अथॉरिटी है वो कोई भी काम करेगी तो उसको ये सोच के करना है कि वो इसको इस हिसाब से काम करना है कि लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो ऑब्जेक्टिव है, द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहला जो ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट का वो ये है दैट एवरी सिटीजन must be in a position to claim these rights. And the second objective is that these rights must be binding upon every authority. Must be binding upon every authority. So now we will see that in our constitution fundamental rights are given. Other than these fundamental rights, there are some there is another section which is called Directive Principles of State Policy, DPSP, Directive Principles of State Policy. So now we will understand in brief what does it mean. ये क्या है Directive Principles of State Policy? ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब यही है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको ये उनके सामने एक बहुत बड़ा एम था कि कंट्री में कैसे सोशल जस्टिस को लाया जाए। सोशल जस्टिस का मतलब कैसे लोगों के बीच में इक्वालिटी को लाया जाए, कैसे इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाए कंट्री के अंदर जहाँ पर कि सबकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो पाए, है ना। तो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहते थे और इसी पर्पस से
हम ये देखते हैं कि ये जो ये सेक्शन जो है डीपीएसपी का इसलिए जोड़ा गया है, ये जो है वो स्टेट को, कल मैं आपको बताऊंगी कि स्टेट का क्या मतलब होता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी मैं इसको बस यहाँ पे ख़त्म करूँगी कि ये डीपीएसपी का क्या मतलब है। डीपीएसपी जो है वो स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे पॉलिसी बनानी है, आपको इस तरह से पॉलिसी बनानी है कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है लोगों के वो कम से कम होते जाए, सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो कम से कम होते जाए। तो दीज आर डायरेक्शन टू स्टेट, दीज आर डायरेक्शन गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू स्टेट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग। कि पॉलिसी आप जब बनाने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।